بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، جو رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غضب کیا گیا نہ ہی وہ گمراہ ہونے والے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، نیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں متنبہ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کی سماعت پر مہر لگا دی ہے، نیز ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن یہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، بس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج و چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اور اللہ اگر چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو،
جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے ہوئے کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اور اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں شبہ ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس جیسا کوئی سورہ بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے حامیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے تو اس آتش سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کسی مثال کے پیش کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر چھوٹی چیز کی۔ بس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے پروردگار کی جانب سے برحق ہے، لیکن کفر اختیار کرنے والے کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ اس سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت کرتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف بدعمال لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ جو فاسقین اللہ کے ساتھ محکم عہد باندھنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جس رشتے کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اسے قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے بارے میں تم کس طرح کفر اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر آخر کار وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کا رخ کیا تو انہیں 7 آسمانوں کی شکل میں بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری ثنا کی تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسرار خلقت بشر کے بارے میں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک و منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو۔ پس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں، نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں قیام کرو اور اس میں جہاں سے چاہو فراوانی سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں زیادتی کا ارتکاب کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا، پھر جس نعمت میں وہ دونوں قیام پذیر تھے اس سے ان دونوں کو نکلوا دیا، اور ہم نے کہا
اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، اور ایک مدت تک زمین میں تمہارا قیام اور سامان زیست ہوگا۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف میرے غضب سے بچنے کی فکر کرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور صبر اور نماز کا سہارا لو؟ اور یہ نماز بارے گراں ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں، جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد تم نے گوسالہ کو باغرض پرستش اختیار کیا اور تم ظالم بن گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو توریت، کتاب اور فرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والا قانون عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے گوسالہ اختیار کر کے یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، بس اپنے خالق کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر بجلی نے تمہیں گرفت میں لے لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوا اتارا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں، اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور فراوانی کے ساتھ جہاں سے چاہو کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو گناہوں کو بخش دے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور ہم نیکوکاروں کو زیادہ ہی عطا کریں گے۔ مگر ظالموں نے اس قول کو جس کا انہیں
कहा गया था दूसरे कौल से बदल दिया तो हमने जालिमों पर आसमान से अजाब नाजिल किया, क्योंकि वो नाफरमानी करते रहते थे। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने कहा अपना असा पत्थर पर मारे। बस पत्थर पर असा मारने के नतीजे में उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। हर ग्रोह को अपने घाट का इल्म हो गया। अल्लाह के रिज़्क़ से खाओ और पियो और मुल्क में फसाद फैलाते मत फिरो। और वो वक्त याद करो जब तुमने कहा था ए मूसा, हम एक ही किस्म के ताम पर हरगिज सब्र नहीं कर सकते। बस आप अपने रब से कह दीजिए कि हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजें फराहम करे, जैसे साग, ककड़ी, गेहूं, मसूर और प्याज। मूसा ने कहा, क्या तुम आला की जगह अदना चीज लेना चाहते हो? ऐसा है तो किसी शहर में उतर जाओ, जो कुछ तुम मांगते हो तुम्हें मिल जाएगा। और उन पर जिल्लत व मोहताजी थोप दी गई और वो अल्लाह के गजब में मुब्तला हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते रहते थे और अंबिया को नाहक कत्ल करते थे। और ये सब इसलिए हुआ कि वो नाफरमानी और हद से तजावुज किया करते थे। बेशक जो लोग ईमान ला चुके हैं और जो लोग यहूदी हुए और नसारा और साबेईन में से जो कोई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल बजा लाए तो उनके रब के पास उनका अज्र है और उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद किया और तुम्हें हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुम्हें दी है उसे पूरी कुव्वत से पकड़ रखो और जो कुछ उसमें मौजूद है उसे याद रखो, इस तरह शायद तुम बच सको। फिर उसके बाद तुम पलट गए। अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो तुम घाटे में होते। और तुम अपने उन लोगों को खूब जानते हो जिन्होंने सब्त हफ्ते के बारे में तजावुज किया था, तो हमने उन्हें हुक्म दिया था जलील बंदर बन जाओ। चुनाचे हमने उस वाक़े को उस जमाने के और बाद के लोगों के लिए इबरत और तकवा रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, खुदा तुम्हें एक गाय ज़िबाह करने का हुक्म देता है। वो बोले, क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मूसा ने कहा, पनाह बखुदा, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाकर जाहिलों में शामिल हो जाऊं? वो बोले, अपने रब से हमारी खातिर दरखास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि गाय कैसी हो। कहा, वो फरमाता है कि वो गाय ना बूढ़ी हो और ना बछिया, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। बस जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया गया है अब उसे बजा लाओ। कहने लगे, अपने रब से हमारे लिए दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि उस गाय का रंग कैसा हो। कहा, वो फरमाता है कि उस गाय का रंग गहरा जर्द और देखने वालों के लिए फरहत बख्श हो। उन्होंने कहा, अपने रब से फिर दरख्वास्त कीजिए कि वो हमें बताए कि वो गाय कैसी हो। गाय हम पर मुश्तबे हो गई है और अगर खुदा ने चाहा तो हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो गाय ऐसी सिधाई हुई ना हो जो हल चलाए और खेती को पानी दे, बल्कि वो सालिम हो, उस पर किसी किस्म का धब्बा ना हो। कहने लगे, अब आपने ठीक निशानदेही की है। फिर उन्होंने गाय को ज़िबाह कर दिया, हालांकि वो ऐसा करने वाले नहीं लगते थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर एक दूसरे पर उसका इल्जाम लगाने लगे, लेकिन जो बात तुम छुपा रहे थे अल्लाह उसे जाहिर करने वाला था। तो हमने कहा, गाय का एक हिस्सा उस मख्तूल के जिस्म पर मारो। यूं अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम अक्ल से काम लो। फिर उसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त रहे, बस वो पत्थर की मानंद बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त हो गए, क्योंकि पत्थरों में से कोई तो ऐसा होता है जिससे नहरें फूटती हैं और कोई ऐसा है कि जिसमें शिगाफ पड़ जाता है तो उससे पानी बह निकलता है, और उनमें कोई ऐसा भी है
जो हैबत इलाही से नीचे गिर पड़ता है और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। क्या तुम इस बात की तवक्को रखते हो कि इन सब बातों के बावजूद यहूदी तुम्हारे दीन पर ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें एक ग्रोह ऐसा रहा है जो अल्लाह का कलाम सुनता है, फिर उसे समझ लेने के बाद जानबूझकर उसमें तहरीफ कर देता है। जब वो अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ला चुके हैं, और जब खलवत में अपने साथियों से मिलते हैं तो कहते हैं जो राज अल्लाह ने तुम्हारे लिए खोले हैं वो तुम इन मुसलमानों को क्यों बताते हो? क्या तुम नहीं समझते कि वो मुसलमान इस बात को तुम्हारे रब के हुजूर तुम्हारे खिलाफ दलील बनाएंगे? क्या यहूद नहीं जानते कि अल्लाह सब कुछ जानता है? ख्वाह वो छुपाएं या जाहिर करें, उनमें कुछ ऐसे नाख्वांदा लोग हैं जो किताब तौरेत को नहीं जानते सिवाय झूठी आरजुओं के, और बस वो अपने ख्याल खाम में रहते हैं। बस हलाकत है उन लोगों के लिए जो तौरेत के नाम से एक किताब अपने हाथों से लिखते हैं, फिर दावा करते हैं कि ये अल्लाह की जानिब से है ताकि उसके जरिए एक नाचीज मुआवजा हासिल करें। बस हलाकत हो उन पर उस चीज की वजह से जिसे उनके हाथों ने लिखा, और हलाकत हो उन पर इस कमाई की वजह से। और यहूदी कहते हैं हमें तो जहन्नुम की आग गिनती के चंद दिनों के अलावा छू नहीं सकती। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि अल्लाह अपने अहद के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर तोहमत बांध रहे हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते? अलबत्ता जो कोई बदी इख्तियार करे और उसके गुनाह उस पर हावी हो जाएं, तो ऐसे लोग अहले दोज़ख हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और जो ईमान लाएं और अच्छे आमाल बजा लाएं, ये लोग अहले जन्नत हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इस्राइल से अहद लिया और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों पर एहसान करो, और लोगों से हुस्न गुफ्तार से पेश आओ, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, फिर चंद अफराद के सिवा तुम सब बरगश्ता हो गए और तुम लोग रूगर्दानी करने वाले हो। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि अपनों का खून ना बहाओगे और अपने ही लोगों को अपनी बस्तियों से ना निकालोगे। फिर तुमने उसका इकरार कर लिया जिसके तुम खुद गवाह हो। फिर तुम ही वो लोग हो जो अपने अफराद को कत्ल करते हो और अपनों में से एक ग्रोह को उनकी बस्तियों से निकालते हो, फिर गुनाह और जुल्म करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो। और अगर वो कैद होकर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम फिदिया देकर उन्हें छुड़ा लेते हो, हालांकि उन्हें निकालना ही तुम्हारे लिए सिरे से हराम था। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ हिस्से से कुफ्र इख्तियार करते हो? बस तुम में से जो ऐसा करे, दुनियावी जिंदगी में उसकी सजा रुसवाई के सिवा और क्या हो सकती है। और आखिरत में ऐसे लोग सख्त तरीन अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले में दुनियावी जिंदगी खरीद ली है, बस उनके अजाब में कोई तखफीफ ना होगी और ना ही उनकी मदद की जाएगी। और बातहकीक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पैर दर पैर रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को नुमाया निशानियां अता की और रूहुल कुद्स के जरिए उनकी ताईद की। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात के खिलाफ ahकाम लेकर आए तो तुम अकड़ गए? फिर तुमने बास को छुटला दिया और बास को तुम लोग कत्ल करते रहे। और वो कहते हैं हमारे दिल खिलाफ में बंद हैं। नहीं, बल्कि उनके कुफ्र के बायस अल्लाह ने उन पर लानत कर रखी है। बस अब वो कम ही ईमान लाएंगे। और जब अल्लाह की जानिब से वो किताब आई जो उनके पास मौजूद बातों की तस्दीक करने वाली है, और वो पहले काफिरों पर फतह की उम्मीद रखते थे, फिर जब उनके पास वो आ गया जिसे वो खूब पहचानते थे तो वो उसके मुनकिर हो गए
बस काफिरों पर अल्लाह की लानत हो। कितनी बुरी है वो चीज जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा किया कि सिर्फ इस बात की जिद में खुदा के नाजिल किए का इनकार करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल नाजिल करता है। बस वो अल्लाह के गजब बालाए गजब में गिरफ्तार हुए और काफिरों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने उतारा है उस पर ईमान ले आओ, तो जवाब देते हैं हम तो उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल हुआ है, उसके अलावा वो किसी चीज को नहीं मानते, हालांकि वो हक है और जो किताब उनके पास है उसकी तस्दीक करता है। कह दीजिए, अगर तुम मोमिन थे तो अल्लाह के पैगंबरों को पहले क्यों कत्ल करते रहे हो? और बातहकीक मूसा तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल लेकर आए, फिर तुमने उसके बाद गौशाला को इख्तियार किया और तुम लोग जालिम हो। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया था और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठाया था और हुक्म दिया था जो चीज तौरात हमने तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुन तो लिया मगर माना नहीं, और उनके कुफ्र के बायस उनके दिलों में गौशाला रच बस गया। कह दीजिए, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमसे बहुत बुरे तकाजे करता है। कह दीजिए, अगर अल्लाह के नजदीक दारे आखिरत दूसरों के बजाय खालिसतन तुम्हारे ही लिए है और तुम इस बात में सच्चे भी हो, तो जरा मौत की तमन्ना करो। और वो मौत के मुतमन्नी हरगिज ना होंगे उन गुनाहों की वजह से जो वो अपने हाथों कर चुके हैं, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप उन लोगों को जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता के मुशरिकीन से भी ज्यादा। उनमें से हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि काश उसे 1000 साल उम्र मिले, हालांकि अगर उसे ये उम्र मिल भी जाए तो ये बात उसके अजाब को हटा नहीं सकती, और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसे खूब देखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, जो कोई जिब्राइल का दुश्मन है वो ये जान ले के उसने तो इस कुरान को बाइज़्न खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल किया, जो उसकी तस्दीक करने वाला है जो पहले से मौजूद है। और ये कुरान ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। जो कोई अल्लाह, उसके फरिश्तों, रसूलों और खासकर जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन हो तो अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाज़ेह निशानियां नाजिल की हैं, और उनका इनकार सिर्फ बदकिरदार लोग ही कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने जब भी कोई अहद किया तो उनमें से एक ग्रोह ने उसे उठा फेंका, बल्कि उनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते। और जब अल्लाह की जानिब से उनके पास एक ऐसा रसूल आया जो उनके यहां मौजूद किताब की तस्दीक करता है, तो अहले किताब में से एक ग्रोह ने अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, गोया कि उसे जानते ही नहीं। और सुलेमान के अहद हुकूमत में शयातीन जो कुछ पढ़ा करते थे, ये यहूदी उसकी पैरवी करने लग गए। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन कुफ्र किया करते थे जो लोगों को सहर की तालीम दिया करते थे। और वो उस इल्म की भी पैरवी करने लगे जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया था, हालांकि ये दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे, जब तक उसे खबरदार ना कर ले कि देखो हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, कहीं तुम कुफ्र इख्तियार ना कर लेना। मगर लोग उन दोनों से वो सहर सीख लेते थे जिससे वो मर्द और उसकी ज़ौजा के दरमियान जुदाई डाल देते, हालांकि इज़्न खुदा के बगैर वो उसके जरिए किसी को जरर नहीं पहुंचा सकते थे। और ये लोग उस चीज को सीखते थे जो उनके लिए जरर रसा हो और फायदेमंद ना हो। और बातहकीक उन्हें इल्म है कि जिसने ये सौदा किया उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और काश वो जान लेते कि उन्होंने अपने नफ्सों का बहुत
बुरा सौदा किया है। और अगर वो ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास उसका सवाब कहीं बेहतर होता। काश वो समझ लेते। ए ईमान वालो, राइना ना कहा करो, बल्कि उसकी जगह उन्जुरना कहा करो, और रसूल की बातें तवज्जो से सुना करो। और काफिरों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। कुफ्र इख्तियार करने वाले, ख्वाह अहले किताब हो या मुशरिकीन, इस बात को पसंद ही नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो। हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत से मखसूस कर देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। हम किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश कराते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत नाजिल करते हैं। क्या तुझे खबर नहीं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या तू नहीं जानता कि आसमानों और जमीन की सल्तनत सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई कारसाज और मददगार नहीं है? क्या तुम लोग अपने रसूल से ऐसा ही सवाल करना चाहते हो जैसा कि इससे कब्ल मूसा से किया गया था? और जो ईमान को कुफ्र से बदल दे वो हतमन सीधे रास्ते से भटक जाता है। मुसलमानों, अक्सर अहले किताब हक वाज़े हो जाने के बावजूद महज अपने बुग़्ज़ और हसद की बिना पर यह चाहते हैं कि किसी तरह ईमान के बाद तुम्हें दोबारा काफिर बना दे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर करे और नजरअंदाज कर दे यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो कुछ नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास मौजूद पाओगे। तुम जो भी अमल अंजाम देते हो अल्लाह यकीनन उसका खूब देखने वाला है। और वो कहते हैं जन्नत में यहूदी या नसरानी के अलावा कोई हरगिज दाखिल नहीं हो सकता। ये महज उनकी आरज़ुएं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। हां, जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और वो नेकी करने वाला है तो उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और उन्हें ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई हुज़्न। और यहूद कहते हैं नसारा का मजहब किसी बुनियाद पर इस्तवार नहीं, और नसारा कहते हैं यहूद का मजहब किसी बुनियाद पर इस्तवार नहीं। हालांकि वो यहूद और नसारा किताब की तिलावत करते हैं। इस तरह की बात जाहिलों ने भी कही। बस अल्लाह बरोज़ क़यामत उनके दरमियान उस मामले में फैसला करेगा जिसमें ये इख्तिलाफ करते थे। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में उसका नाम लेने से रोके और उनकी वीरानी की कोशिश करे। उन लोगों को मसाजिद में दाखिल होने का हक नहीं मगर खौफ के साथ। उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अज़ाब अजीम है। और मशरिक हो या मगरिब दोनों अल्लाह ही के हैं। बस जिधर भी रुख करो उधर अल्लाह की जात है। बेशक अल्लाह सब चीजों का इहाता रखने वाला बड़ा इल्म वाला है। और वो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बना लिया है। पाक है वो जात ऐसी बातों से, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो सब उसकी मिल्कियत है। सब उसके ताबे फरमान है। वो आसमानों और जमीन का मुजिद है। और जब वो किसी अम्र का फैसला कर लेता है तो उससे कहता है हो जा, बस वो हो जाता है। और बेइल्म लोग कहते हैं अल्लाह हमसे हम कलाम क्यों नहीं होता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। उनसे पहले लोग भी इसी तरह की बात कर चुके हैं। उनके दिल एक जैसे हो गए हैं। हमने तो अहले यकीन के लिए खोल कर निशानियां बयान की हैं। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ बशारत देने वाला और तंबीह करने वाला बनाकर भेजा है। और
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से अहले दोज़ख के बारे में कोई पुरसिश नहीं होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से यहूद और नसारा उस वक्त तक खुश नहीं हो सकते जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनके मज़हब के पैरों न बन जाएं। कह दीजिए, यकीनन अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है और उस इल्म के बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास आ चुका है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए अल्लाह की तरफ से ना कोई कारसाज होगा और ना मददगार। जिन्हें हमने किताब इनायत की है और वो उसका हक तिलावत अदा करते हैं, वही लोग इस कुरान पर ईमान लाएंगे और जो इससे कुफ्र इख्तियार करेगा बस वही घाटे में है। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें अता की है और ये कि मैंने तुम्हें अहले आलम पर फजीलत दी है। और उस रोज से डरो जब ना कोई किसी के कुछ काम आएगा, ना उससे मुआवजा कबूल होगा, ना शफात उसे फायदा पहुंचा सकेगी और ना ही उन्हें कोई मदद मिल सकेगी। और वो वक्त याद रखो जब इब्राहिम को उनके रब ने चंद कलेमात से आजमाया और उन्होंने उन्हें पूरा कर दिखाया। इरशाद हुआ, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। उन्होंने कहा, और मेरी औलाद से भी। इरशाद हुआ, मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुंचेगा। और वो वक्त याद रखो जब हमने खाने काबा को मरजाए खलाइक और मकाम अमन करार दिया और हुक्म दिया कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, और हमने इब्राहिम और इस्माइल पर यह जिम्मेदारी आयद की कि तुम दोनों मेरे घर को तवाफ, एतिकाफ और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और वो वक्त याद रखो जब इब्राहिम ने दुआ की, ए रब, इसे अमन का शहर बना दे और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान लाए उन्हें सम्राट में से रिज़्क़ इनायत फरमा। इरशाद हुआ, जो कुफ्र इख्तियार करेंगे उन्हें भी कुछ दिन दुनिया की लज्जतों से बहरामंद होने की मोहलत दूंगा, फिर उन्हें अज़ाब जहन्नुम की तरफ धकेल दूंगा और वो बदतरीन ठिकाना है। और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल इस घर की बुनियादें उठा रहे थे, दुआ कर रहे थे कि ए हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला, जानने वाला है। ए हमारे रब, हम दोनों को अपना मुतियो फरमा बरदार बना और हमारी ज़ुर्रियत से अपनी एक फरमा बरदार उम्मत पैदा कर और हमें हमारी इबादत की हकीकत से आगाह फरमा और हमारी तौबा कबूल फरमा, यकीनन तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। ए हमारे रब, इनमें एक रसूल इन्हीं में से मबूस फरमा जो इन्हें तेरी आयात सुनाए और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम दे और इन्हें हर किस्म के रज़ाइल से पाक करे। बेशक तू बड़ा गालिब आने वाला हकीम है। और मिल्लत इब्राहिम से अब कौन इनहराफ करेगा सिवाय उस शख्स के जिसने अपने आप को हिमाकत में मुब्तला किया। इब्राहिम को तो हमने दुनिया में बरगुज़ीदा बनाया और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। इब्राहिम का ये हाल भी काबिल जिक्र है कि जब उनके रब ने उनसे कहा, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, वो बोले, मैंने अपने आप को रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया। और इब्राहिम ने अपनी औलाद को इसी मिल्लत पर चलने की वसीयत की और याकूब ने भी अपनी औलाद को यही वसीयत की कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा तुम तादमे मर्ग मुस्लिम ही रहो। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया?
उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? सब ने कहा, हम उस माबूद की बंदगी करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का माबूद है, जो यकता माबूद, और हम उसके फरमाबरदार हैं। ये गुज़िश्ता उम्मत की बात है। उनके अमाल उनके लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुम लोगों से गुज़िश्ता उम्मतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। वो लोग कहते हैं यहूदी या नसरानी बनो तो हिदायत याफ्ता हो जाओगे। उनसे कह दीजिए नहीं, बल्कि यकसूई से मिल्लते इब्राहिमी की पैरवी करो, और इब्राहिम मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों, कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया है, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाजिल किया गया, और जो मूसा व ईसा को दिया गया, और जो अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया, उन सब पर ईमान लाए। हम उनमें से किसी में भी तफरीक नहीं करते और हम सिर्फ उसी के फरमाबरदार हैं। अगर ये लोग उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो वो हिदायत पर हैं, और अगर वो रू गर्दानी करें तो वो सिर्फ मुखालिफत के दर पे हैं। उनके मुकाबले में तुम्हारे हिमायत के लिए अल्लाह काफी होगा, और वो खूब सुनने वाला, जानने वाला है। खुदाई रंग इख्तियार करो, अल्लाह के रंग से अच्छा और किसका रंग हो सकता है, और हम सिर्फ उसी के इबादत गुजार हैं। कह दीजिए, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे मुखासमत करते हो? हालांकि हमारा और तुम्हारा रब वही है, और हमारे लिए हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, और हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? पूछिए, क्या तुम बेहतर जानते हो या अल्लाह? और उससे बढ़कर जालिम और कौन हो सकता है जिसके जिम्मे अल्लाह की तरफ से गवाही हो और वो उसे छुपाए? और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर तो नहीं है। ये उम्मत गुजर चुकी है, उनके अमाल उनके लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और तुमसे गुज़िश्ता उम्मतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे।